Greeting dear students. So I hope everything is clear related to the anatomy of human being digestive system कि कौन कौन से parts होते हैं और generally वो कौन कौन से काम करते हैं. Now we will discuss in detail about the nutrition in human being, the different role of different part of alimentary canal and the role of associated digestive gland. कि mainly alimentary canal के part तो नहीं होते हैं but they are important role in the digestion process in case of human being. So we will start with the alimentary canal. First you should be aware about the term alimentary canal कि alimentary canal के main parts कौन कौन से होते हैं. तो first is mouth, esophagus. esophagus के बाद क्या start होता है as you are already aware. तो stomach part. After stomach part is connected to small intestine and small intestine is connected to the large intestine. So these are the main parts of alimentary canal. So alimentary canal, how digestion process takes place in the different parts of this alimentary canal कि कैसे digestion होता है अलग अलग parts के अंदर. So they can even ask you कि alimentary canal का वो वाला part बताओ जिस पे कोई भी जहाँ पे कुछ भी digestion नहीं होता. That part is the esophagus part. So we will start with the first part which is mouth. And all of you are already aware about the different steps of holozoic nutrition. First step is ingestion. Ingestion means we have to put food inside our body कि food को हमको अपनी body के अंदर लेके जाना है. तो हम कैसे लेके जाते हैं? With the help of our hand और cutlery we put the food into our mouth कि खाना जो है वो हमारे mouth के अंदर जाता है. So if the question is there, where digestion process starts in case of human being, digestion process start कहाँ पे होती है human being के अंदर? That is the mouth, which is the main site where digestion of food takes place. The main site is small intestine. And the third question that generally come from this topic is which is the main site where absorption of food takes place? Small intestine. So we will move to the first part which is the mouth. As all of you are aware, as soon as we put the food into our mouth, जैसे हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो क्या होता है? A liquid is released inside our mouth. That fluid or liquid is generally called saliva. वो fluid और liquid क्या होता है? Saliva. And other helping organs you can say, or the accessory organs which are present in our mouth is our teeth and the tongue. So teeth and tongue, if they ask you about what is the role of teeth and tongue, teeth का role क्या है? मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड मीन मैकेनिकली, क्योंकि हमारी जो एसोफेगस होती है, बी केयरफुल, द फूड पाइप और एसोफेगस इट इज ऑन द बैक साइड, वो पीछे की तरफ होती है ना कि आगे की तरफ. सो अगर आपको भूल जाते हो कि बार बार कि भाई जो हमारी फूड पाइप है वो आगे है या पीछे है, तो नंबर ऑफ टाइम यू पीपल हैव बीन टोल्ड डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग द फूड. तो आपको बहुत बार बोला हुआ है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो बातें नहीं करनी चाहिए, बट आप लोग मानते नहीं हो. नंबर ऑफ टाइम यू फॉलो दिस कि खाना खा रहे हो लंच टाइम में ड्यूरिंग स्कूल, तो आप बातें करते हो आपस में. तो कई बार क्या होता है इवन एट योर होम कि कई बार खाना खाते खाते हम बोलने की कोशिश करते हैं तो खाना जो है हमारे गले में फंस जाता है. हम जनरल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं. तो व्हाट योर पेरेंट और कलीग विल डू, दे विल रब हैंड ऑन योर बैक साइड. सो दिस इज द शॉर्टकट टू लर्न कि एसोफेगस और फूड पाइप इज ऑन अवर बैक साइड, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है. दिस इज अवर एयर पाइप, ट्रेकिया. सो माउथ के अंदर क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है. अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा. तो सलाइवा, फर्स्ट रोल ऑफ सलाइवा कि मैकेनिकल चर्निंग होगी फूड की, टीथ जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और जो सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा. इट विल कॉज द वेटिंग ऑफ फूड कि फूड जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, सो कैन इट कैन इजिली मूव इनसाइड द एसोफेगस. If the question is there, what is the role of saliva? Then you have to write saliva is used for softening of food. कि जो मैकेनिकल चर्न फूड होगा, दांतों से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसको वो सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे और उसको वो क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं. सेकेंड रोल ऑफ सलाइवा इज कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. दैट एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी amylase. The function of this salivary amylase is to start the breakdown of starch. कि ये जो एंजाइम है कि जो हमने खाना खाया है उसके अंदर जो हमारा स्टार्च का कंटेंट है उसका वो ब्रेक डाउन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा. वो डेक्सट्रिन्स होते हैं,
बहुत बड़ी चेन होती है स्टार्च ग्लूकोज की, उसको छोटी छोटी चेन्स के अंदर तोड़ देता है। ग्लूकोज में नहीं तोड़ेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक नेम फॉर दैट इज डेक्स्ट्रीन। तो वो छोटी छोटी चेन्स के अंदर उसको, मान लो बड़ी चेन है, उसको छोटी छोटी चेन के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। सो दिस सलाइवरी अमाइलेज विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च एंड द जनरल नेम विच इज यूज्ड फॉर द स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी माउथ में, इट विल स्टार्ट इन द माउथ। तो सलाइवा के दो काम हैं। फर्स्ट रोल इज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, सेकेंड सो दैट इट कैन इजिली मूव इन द फूड पाइप और एसोफेगस। सेकेंड रोल इज इट विल रिलीज एन एंजाइम, दिस salivary amylase, it will cause the breakdown of starch component of the food or carbohydrate component of the food. So these salivary glands are, there are three types of salivary glands which are present at the different part in our mouth. So this is what all about the mouth portion. So next is esophagus. So esophagus is that part of human digestive system or alimentary canal, there will be no digestion of food. So, but the most important portion from this esophagus, first is I have already discussed, is there any role of esophagus in case of digestion? कि esophagus का digestion में कोई role है? No, there is no role. So what is the role of esophagus? So esophagus क्या है? जो खाना हमारे माउथ में है और स्टमक को है, दोनों को कनेक्ट करती है, वो आगे तक लेके जाती है। So अनलेस फूड इज इन अवर माउथ, कि जब तक खाना जो है वो हमारे मुंह के अंदर है, तो वी कैन कंट्रोल दी चूइंग, कि हमारे हाथ हमारे कंट्रोल में वॉलेंट्री मसल्स हैं कि हम चूइंग करते हैं फूड को। बट एज सून एज वी स्वेलो दी फूड लाइक दिस, जैसे हम स्वेलो करते हैं, स्वेलोइंग तक तो हमारे कंट्रोल में है फूड की मूवमेंट, बट आफ्टर दैट द मूवमेंट ऑफ दैट फूड, चर्न फूड, सॉफ्टन फूड इज नॉट इन अवर हैंड। तो वो किसके अंदर चला जाएगा? एसोफेगस के अंदर। तो एसोफेगस के अंदर वो धीरे धीरे अपने आप मूव करता है, कि जो एसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और फूड को वो क्या करती है? पुश करती है आगे की तरफ। सिमिलर टू द टूथपेस्ट ट्यूब, की टूथपेस्ट ट्यूब होती है हमारी, लेट अज्यूम ये ओपनिंग है, अगर हम उसको पीछे से दबाना शुरू करेंगे तो जहां पे हमारी फिंगर होगी, दैट पॉइंट वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे जैसे हमारी फिंगर नीचे आती जाएगी, पीछे वाले एरिया में क्या होता जाएगा? रिलैक्सेशन, वो नॉर्मल होती जाएगी। तो सेम टाइप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन वेव विल मूव इन द एसोफेगस, और वो फूड को क्या करती है? आगे की तरफ पुश करती है। दैट रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स विच कॉजेज द फूड टू मूव इनसाइड द एसोफेगस, जिसकी वजह से फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर मूव करता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और फिनोमिना इज कॉल्ड पेरिस्टालिस। तो दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वो फूड को क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके फूड को आगे की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर दोस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज, द फूड विल एंटर इनटू द स्टमक पोर्शन। तो स्टमक के अंदर एंटर करने के बाद वन मोर क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम द स्टमक पार्ट इज नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट विल बी डाइजेस्टेड इन द स्टमक, कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है हमारे फूड का जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टेड होता है? दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन विल ब्रेक डाउन, कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर? पेप्सिन। अब जो स्टमक है उसके अंदर की जो स्किन होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कि फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टमक है, तो इसकी जो अंदर की लेयर है स्किन की उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और गैस्ट्रिक, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कि जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द वर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर इज द गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दोज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज द गैस्ट्रिक एसिड विच इज केमिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं इनर लाइनिंग में स्टमक के, वो क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से? व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड? डायरेक्टली दे कैन आस्क यू। सो देयर आर टू रोल्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। दो काम होते हैं गैस्ट्रिक एसिड के। फर्स्ट इज इट विल किल द बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर थ्रू द फूड, कि जो हम खाना खाने वाले हैं उसमें से जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ अंदर आ गया है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को वो किल कर देता है, सभी को नहीं कर पाता है। सेकेंड इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज टू मेंटेन द एसिडिक पीएच। तो 2 से 3 के अराउंड ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो पेप्सिन एंजाइम है,
पेप्सिन एंजाइम कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कि वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। अब पेप्सिन तभी काम करता है जब उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या होगा, एसिडिक। तो सेकेंड रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कि स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से जो पेप्सिन है वो अपना काम करता है और प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। So the only component of food that get digested in the stomach is the pepsin. Second is the mucus. So one more question that come from the stomach portion of the digestive system in case of human being. What is the role of mucus? Mucus will form a layer over the inner lining of stomach. कि जैसे आप नोटबुक पे कवर चढ़ाते हो तो वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रखता है नॉर्मल वियर एंड टियर से। तो सेम उसी तरह से म्यूकस क्या होता है, एक लेयर बना लेता है स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर, ताकि जो इरिटेशन है, क्योंकि एसिड होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनर लाइनिंग पे इरिटेशन हो सकती है। टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, वहां पे क्या होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना स्टमक की इनर लाइनिंग को। बट when in any case level of acid is more than the normal, कि किसी वजह से जो एसिड का लेवल है वो नॉर्मल से अगर ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो म्यूकस है वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। 1 मिनट। So in that case म्यूकस विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट, उसकी एक लिमिट है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, व्हेन एसिड इज रिलीज मोर देन द नॉर्मल, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। तो एसिडिटी के केस में क्या हो जाएगा कि नॉर्मल जो लेवल है एसिड का वो पहले वाले लेवल से ज्यादा रिलीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएंगे। एंड अगर कंटिन्यूसली कई दिनों तक वो होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनर लाइनिंग जो है स्टमक की उसमें अल्सर हो जाते हैं। तो द स्पेसिफिक नेम फॉर दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो वो जो आप जैसे एसिड गिर जाता है हमारे हाथ पे या कहीं और पे स्किन के ऊपर, तो वहां पे पूरा रैशेज हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। तो दैट इज सिमिलर टू दैट पेप्टिक अल्सर। So I hope the role of stomach is clear to everyone. So gastric juice composed of 3 things: gastric acid, mucus, and the enzyme called pepsin. Next step is small intestine. So after reaching the food into the small intestine, कि जब वो small stomach के अंदर खाना आ गया, मिक्सचर मिक्स हो गया गैस्ट्रिक जूस के साथ, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है उसके अंदर, कि वो मिक्स होने के बाद क्या होगा, वो आगे जाएगा। अब आगे जाने के लिए वहां पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल्व की तरह होता है, दैट वॉल्व इज कॉल्ड स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और फूड जो है वो आगे चला जाता है। अब हमारे स्टमक में जो फूड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जब वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में वो एंटर करता है, इट इज क्लियर इन द एनाटॉमी पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, डुडेनम पार्ट, वहां पे जो फूड है वो हमारा क्या करता है, एसिडिक फूड एंटर करता है। तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 काम होते हैं, एक होता है डाइजेशन ऑफ फूड, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो डाइजेशन वाला पोर्शन होता है उसमें किसका रोल होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स का, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का। तो लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल। पेनक्रिया क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, ये ध्यान रखना कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट इज अमाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सेकेंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज लाइपेज। तो अमाइलेज जो है वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, स्टार्च कंपोनेंट है, उसको डाइजेस्ट करता है और अल्टीमेटली जो फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, ग्लूकोज में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो चुके। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड। लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है और उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो रिमेंबर दिस एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। प्रोटीन के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड। और फैट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट या ऑयल जिसको हम बोल देते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा जो फूड है, तो एनाटॉमी में भी हमने पढ़ा था कि लीवर में से एक इस तरह से डक्ट निकलता है, एक पाइप बोल सकते हैं इसको आम लैंग्वेज में, बट स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड डक्ट। तो लीवर में से एक डक्ट निकलती है, पेनक्रिया में से एक डक्ट निकलती है,
दोनों आ जाते हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर, जहां पे दोनों का फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाता है, और वहां से क्या होता है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो वर्ड जहां पे भी आएगा इट मीन इट इज रिलेटेड टू द लीवर। सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन ए हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट वो खुलता है डुडेनम पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां से एक फ्लूइड आता है, और वो जो हमारा ये एक चीज का ध्यान रखना, लीवर में से और पेनक्रिया में से जो मिक्स होके जो लिक्विड आता है, फ्लूइड आता है, पेनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल मिलके आता है, वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। वो एल्कलाइन किसकी वजह से होता है, बाइल जो होता है उसके अंदर कई सारे बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये जो लिक्विड आता है यहाँ से वो क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जो स्टमक में से डाइजेस्टेड काइम बोलते हैं उसको, कि स्टमक में से जो ये एसिडिक फूड मिक्स होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है वो काइम होता है, वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही ये वाला मिक्सचर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आएगा, डुडेनम पार्ट में आएगा, तो वहां पे पेप्सिन जो है वो काम करना बंद कर देता है। क्यों, पेप्सिन ओनली वर्क अंडर द एसिडिक कंडीशन। और जैसे ही वो यहाँ पे आता है डुडेनम पार्ट के अंदर, डुडेनम पार्ट के अंदर आते ही क्या होता है, वो थोड़ा सा बेसिक होता है, पीएच चेंज हो जाएगी, पेप्सिन काम करना बंद कर देगा। तो ये जो मिक्सचर ऑफ फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वहां से ये जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, लीवर और पेनक्रिया की जो कॉमन डक्ट है, उसमें से फ्लूइड आता है। अब उसके अंदर आप देखोगे दो चीजें हैं, वन इज बाइल, सेकेंड इज पेनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस में से जो अमाइलेज एंजाइम है वो उसका ब्रेक डाउन कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। जो पीछे से स्टमक में से जो हमारा प्रोटीन आएगा, जो थोड़ा बहुत पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया होगा और बाकी बचा हुआ है, दैट विल बी डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन उसको किस में तोड़ देगा, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन विच इज अमीनो एसिड। और जो लाइपेज है वो क्या करेगा, जो फैटी कंटेंट आएगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोज में। बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगी और यूज करेगी। नाउ रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज क्लियर टू एवरीवन, कि वो उसमें एंजाइम होते हैं एंड दे विल डाइजेस्ट द ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल, or they can even ask the question what is the role of liver. So first we will discuss the first role of liver is to release the bile, and what is the role of bile? Bile is responsible for emulsification of fat और oil. जो फैट और ऑयल हमारे फूड कंपोनेंट में प्रेजेंट है उसका इमल्सिफिकेशन करता है। तो दिस क्वेश्चन एंड हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट हैपन, कि जब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, वाटर लिया है, ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, ऑयल। आफ्टर पुटिंग दी ऑयल, और मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो पहले तो क्या होता है, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑयल की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो ऑयल की ड्रॉप इकट्ठी हो जाएगी और एक आपको एक बड़ी सी स्फीयर या पूरा एक ऑयल जो है वो अलग हो जाता है। अब इस ऑयल के ऊपर या फैट कंपोनेंट के ऊपर किसने काम करना है, लाइपेज ने। अगर इतना बड़ा मान लो ऑयल की ड्रॉप होगी और लाइपेज आके इसके ऊपर काम करेगा, तो इतने बड़े ड्रॉप को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बाइल जो है, जो इस जूस के साथ आया है, इट विल मिक्स विद दिस काइम, और काइम के साथ मिक्स हो जाता है। वो क्या करता है, जो फैटी कंपोनेंट है उसको क्या करता है, इट विल ब्रेक डाउन द बिग ऑयल एंड फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, कि वो क्या करता है, उसको छोटी छोटी बूंदों के अंदर क्या कर देता है, ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जो एंजाइम लाइपेज होता है वो इजीली इन छोटी छोटी ड्रॉप्स के ऊपर काम कर सकता है और उसको डाइजेशन करने में कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू द बिगर साइज ऑफ दिस ऑयल। So this is the role of bile in the digestion of food, that is for the emulsification of fat. Emulsification of fat means to convert fat or oil into small droplets, so it can be easily digested or easily break down with the help of lipase, और वो आसानी से उसको तोड़ देगा। One more question that comes from this topic is what is the role of liver in human being? So first role is it will release the bile, and bile, all of you are already aware, bile is stored in gall bladder, and
द बाइल विल बी यूज फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जो डाइजेशन ऑफ फैट है उसके अंदर वो क्या करता है, हेल्प करता है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली तो लाइपेज है वो उसको तोड़ता है। सेकेंड रोल ऑफ लाइपेज लीवर इज टू इंटॉक्सिफिकेशन। तो वो क्या करता है, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के अंदर उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल द अमोनिया और द नाइट्रोजनस बेस जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जो सेल यूज करती हैं, सेल बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर कई सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाएंगे इट विल बी पॉइजनस फॉर अस। सो द फंक्शन ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लीवर इज इंटॉक्सिफिकेशन। वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में उसको किस में कन्वर्ट करता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर। एंड देन इट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट सब्सटेंस इज यूरिया, कि जो हमारा यूरिनेशन के थ्रू यूरिया रिलीज करते हैं वो भी किससे रिलीज, वो कौन बनाता है, लीवर। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन पार्ट। So in case of absorption part, the role of small intestine is कि small intestine जो होती है, कि लेट अस अज्यूम ये small intestine है, तो small intestine की inner lining के ऊपर इस तरह से इनको क्या बुलाते हैं, विलाई, और इनके अंदर क्या रहती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है, जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वो स्मॉल कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर कन्वर्जन इट विल बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ विलाई। द फंक्शन ऑफ विलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को वो इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ और क्या करते हैं, इस विलाई के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट। दोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रो विलाई। So the function of how absorption is increased in case of small intestine. Small intestine is designed in such a manner, so there are villi and microvilli. The function of villi and microvilli is to increase the surface area for the absorption. और उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड है उनको एब्जॉर्ब करता है और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। So the absorption is increased by using villi and microvilli. Next is large intestine. There is no as such any role in the digestion process or absorption process of digested food. तो large intestine generally क्या करती है, water को absorb करती है जो undigested food है। certain drugs, medicines जो patient लेते हैं उसको केस में वो absorb करती है। So there is not as such any bigger role for the digestion and absorption for the large intestine. और जो undigested food है it can be removed from the body by passing through the rectum. So I hope this nutrition in human being is clear to everyone. What are the different parts of the alimentary canal? What are the function of different parts of the alimentary canal? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. What are the different role of associated digestive gland? What are the enzymes released by this associated digestive gland? वन मोर थिंग इफ यू वांट टू ऐड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी क्या करता है, फ्लूइड रिलीज करता है, उसके अंदर में भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इन तीनों के साथ साथ और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो ये जो इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बोलते हैं उसको, दैट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विल रिलीज द इंटेस्टाइनल जूस। And it also contain number of enzymes that will help in the digestion of different components of food. So enzyme दो जगह से आते हैं. First enzyme is released by the gastric mucosa, pepsin. Second number of enzymes will be released in the pancreatic juice, and the enzymes released in the small intestine or intestinal juice. So enzymes are the biocatalysts which increase the rate or speed of digestion process. कि वो digestion की speed को बढ़ा देते हैं. अगर enzyme नहीं होंगे तो it will take too much time. अगर ज्यादा टाइम लगेगा फूड को डाइजेस्ट करने में तो हम एनर्जी बना नहीं पाएंगे. एनर्जी नहीं बनेगी तो देन वी विल नॉट बी एबल टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग नाउ. जो हम अब कर सकते हैं जितना ज्यादा काम उतना नहीं कर पाते. So this is what all about the nutrition in case of human being, and what are the function of different organs that are the part of alimentary canal and the associated glands. So if you still have any doubt related to any of the parts in case of nutrition in human being, you can ask in the comment section. Now thank you students.